Welcome back, students. In the previous lesson, we had learned about the substitution method. Today, we are going to do some leftover problems, especially the word problems. ऐसी problems जिसमें हमको equations नहीं given होती हैं, हमको कुछ words given होते हैं. उन words से हम पहले mathematical equations create करते हैं और बाद में we will be using the substitution method for solving those problems. So let's begin our day. This is Vinish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School, Udhampur, Jammu and Kashmir with the word problems. So let's start with our first question. Question क्या बोलता है? Let's understand the question first. Question number 3 of the book, first part. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Word problems को definitely 2 to 3 times बच्चों को पढ़ना चाहिए. तो एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ आपके लिए. The difference का मतलब क्या होता है? Subtract करना है. Between two numbers is 26 and second condition, one number is 3 times the other number. Find them. Of course दो नंबर होंगे. Find them करना है तो दो नंबर मतलब दो unknown. So हम लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं start. We'll say let the two numbers be x and y. And let us say that x is bigger than y. Bigger number. तो according to ATQ मतलब according to first condition, first part of the sentence, the difference between two numbers is 26. That is big number minus small number is 26. तो हम लिखेंगे x bigger number minus smaller number y is equal to 26. So we have converted a sentence, a word problem into a mathematical problem involving two variables. Equation number 1 आ गई. ठीक है. अब आओ देखते हैं सेकेंड पार्ट. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर इज 3 टाइम्स. टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन. तो हम छोटे नंबर को अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, अगर हम छोटा नंबर कौन था हमारा y, अगर हम y को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा वो 3y. और वो 3y किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द बिगर नंबर x. So according to the third condition, the second condition, x is equal to 3y. That's my equation number 2. So abhi tak what we have done is we have converted a word problem into a algebraic problem. Now our step starts of the substitution method. Condition number 2 already hai x is equal to 3y. So what we can do is substitute equation number 2 in equation number 1 and we get x की जगह हम लिखेंगे 3y. So 3y minus y is equal to 26. 3y minus y कितना है? 2y. So 2y is equal to 26 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 को. Therefore y is equal to 26 by 2 and that is 13. तो हमको y तो मिल गया. अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 में डाल देंगे. y की वैल्यू, we'll put the value of y, right? So we'll put the value of y in this equation. Okay, so what do we get? I'll get x is equal to 3 into 3 multiplied by 13 and 13 3 कितना होता है? 39. So हमको मिल गया that x is equal to 39 and y is equal to 13. That is our answer. So the bigger number is 39 and the smaller number is 13. और हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? 39 minus 13. 39 minus 13 कितना होता है? 26. And 13 into 3. 13 3s are 39. तो हमारी दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं इन वैल्यूज ऑफ x एंड y से.
ऑलराइट, तो अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप प्लीज अटेम्प्ट करें बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट. आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले. इट सेज दो हमारे पास the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. तो ज्योमेट्री से हमको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is equal to 180 degrees. स्ट्रेट लाइन बनते हैं. तो एक एंगल मान लो x है, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस x. इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, दो एंगल्स हो गए. तो लार्जर, ये लार्जर है y एज कंपेयर टू x. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees. Okay, so let the two angles be x and y. Okay, now bigger वाला कौन है मेरा y. According to first condition, the angles, first condition is the angles are supplementary. Supplementary मतलब x plus y is equal to 180 degrees. That is my first condition. From here I can write y is equal to 180 degrees minus x. इसको हमने डायग्राम में भी लिख लिया है. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई. Now according to the second condition, the bigger angle is bigger than smaller by 18 degrees. That means y is equal to x plus 18 degrees. The bigger angle y exceeds the smaller by 18 degrees. तो कंडीशन नंबर 2 में कोई दिक्कत? वेरी गुड. Now let us put equation number 1 in equation number 2. What will we get? तो y की जगह हम लिख देंगे 180 डिग्रीज माइनस एक्स. तो ये आ गया मेरा 180 डिग्रीज माइनस एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन ऑलरेडी है हमारे पास, x प्लस 18. ये भी वही है, x प्लस 18. सो 180 माइनस एक्स, ये वाली कंडीशन को हमने यहाँ लिख दिया. नाउ व्हाट आई कैन डू इज, लेट मी टेक दिस माइनस एक्स टू द राइट हैंड साइड. ये प्लस एक्स बन जाएगा और 18 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए. सो 180 माइनस 18 इज 162 और x प्लस x इज 2x. सो 2x इज 62. x will be equal to 162 divided by 2, that is 81 degrees. तो x हमको पता चल गया, x की वैल्यू मालूम चल गई 81 डिग्री. Now let us substitute the value of x here in equation number 2. So what will we get? We'll get y is equal to 81 degrees plus 18 degrees and that is going to be equal to 99 degrees. हमारा आंसर आ गया y is equal to 99 degrees. Finally हम अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं? We write a result. Thus the two angles are 99 degrees and 81 degrees. और हम दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, सप्लीमेंट्री हो गए. और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 99 माइनस 81 18 आ रहा है. तो इसका मतलब जो आंसर आया हमारा वो वेरीफाइड है, ठीक आंसर आ गया. ठीक है, समझ आया लोगों को क्वेश्चन? आपको समझ आया है तो आप पॉज करें, रिवाइंड भी कर सकते हैं, फिर देखना चाहें एक बार फिर से देखिए और इसको स्लोली चलाएं. और स्टेप वाइज जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर आपको भी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, डायग्राम भी बनाना है. तो बच्चे लोग, आपको अगर मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेना आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, एक दो फोटो खींच लीजिए इसकी और उसके बाद आप इसको एनलार्ज करके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट? In case you have a question, please do mention in the YouTube chat and I shall respond back to you. Okay. So we are going to question number 3, third part. बोलता है, a coach of a cricket team buys
7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. So it's a question about buying bats and balls. And these bats and balls have been purchased 2 times. 2 बार, एक बार 7 bats और 6 balls खरीदे, दूसरी बार हमने 3 bats and 5 balls परचेज किए और उसकी कॉस्ट भी हमको मालूम है कितना हमारा बिल आया. ढूंढना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. मतलब एक बैट की कॉस्ट क्या है और एक बॉल की कॉस्ट क्या है. सो वट एवर वी हैव टू फाइंड, उसी को हम एक्स और वाई मानते हैं ना. सो वी विल स्टार्ट बाय सेइंग लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x रुपीज and the cost of one ball is equal to y rupees. Okay. तो अगर हमने एक बैट और एक बॉल खरीदा होता तो कितना बिल आता? x प्लस वाई. लेकिन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमने कितने बैट खरीदे हैं? 7 बैट्स. तो एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 बैट्स की क्या हो जाएगी? 7x. सही है. तो हमने लिख दिया 7x. और क्या खरीदा हमने? वी हैव परचेज्ड 6 बॉल्स. 1 बॉल कॉस्ट y रुपीज, तो 6 बॉल्स कितने के आएंगे? 6 इंटू वाई. एंड टोटल बिल इज हाउ मच? 3800. यहां लिख दिया हमने 3800. सो वी गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग एंड दैट इज 7x प्लस 6y is equal to 3800. Okay. Now let us go to the second part. She buys 3 bats and 5 balls. तो 3 bats हो जाएगा 3x and 5 balls हो जाएगा 5y. तो 3x plus 5y is equal to 1750 rupees. That's my equation number 2. Right? नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. पहला इक्वेशन 1 और 2 बनाने से हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया. दैट वी हैव कन्वर्टेड अ वर्ड प्रॉब्लम इनटू अ एल्जेब्राइक प्रॉब्लम. एक्स और वाई में लिख दिया, इसको बोलते हैं एल्जेब्रा की फॉर्म में लिखना. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट आई कैन डू इज 6y को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करवाएंगे. प्लस का क्या बनेगा? माइनस. आई विल गेट 3800 माइनस 6y. तो 7x is equal to 3800 minus 6y और x will be equal to 3800 minus 6y whole divided by 7. क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना 7 को. तो आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 हमने 1 से बनाई है. अब हम 3 को डाल देंगे किसमें? दूसरी वाली में, 2 में. पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2. व्हाट विल वी गेट? तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. तो 3 इंटू x की वैल्यू हमने कहा कि इधर लिख दी. राइट. तो 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y. ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को. तो 3 इंटू 3800 होता है 11400 बाय 7 माइनस 6 3 18 18y बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. अब हम क्या करते हैं? दोनों इन दो टर्म्स में y है तो एलसीएम लेते हैं इनका हम. तो 7 18 के नीचे है तो माइनस 18y बाय 7 एंड 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है. तो इसका मतलब एलसीएम तो 7 आया. 7 5 35 बन जाएगा. तो 35y. और हमने ये 11400 बाय 7 को हमने इक्वल टू के उस तरफ ले गए तो वो प्लस का माइनस बन गया. इधर भी एलसीएम लिया हमने. 1750 इंटू 7 कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप. 12250 माइनस 11400 अपॉन 7. अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है तो अब 7 को हम कट कर सकते हैं. और 35y एंड माइनस 18y होता है 17y एंड 12250 माइनस 11400 होता है 850. सो इफ आई
क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो एक ही बात है. सो y is equal to 1850 by 17, that comes out to be equal to rupees 50. therefore y आ गया हमारा 50, इक्वेशन नंबर 4. अब हम 4 को डाल सकते हैं, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. लेट अस पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2. सो आई विल गेट 3x plus 5y is equal to 1750 थी ना हमारी क्वेश्चन नंबर 2. y मिल गया हमको 50. I can write 3x plus 50 into 5, 250 is equal to 1750. 250 को उधर ले जाएंगे, प्लस का माइनस बन जाएगा. तो 1750 minus 250 is 1500. So 3x is 1500. Therefore x is equal to 500. हमारे को x भी आ गया और हमको y भी आ गया. x क्या था? x is the cost of bat and y is the cost of ball. तो हमारा x आया है 500 और y आया है 50. तो हम फाइनली रिजल्ट कैसे लिखते हैं? हम बोलते हैं thus the bat costs rupees 500 and the ball costs rupees 50 in this question. Right? Students, there were only 3 questions, word problems of substitution method. So kindly do these 3 problems in your copies and leave a thumbs up if you like the lesson and subscribe to the channel so that you get automatically updates whenever new videos are put up on the channel. Automatically you will get a message. Thank you very much for the day, and complete your work so that in the next class we are able to start a new lesson, a new exercise, right? Solving equations by a new method. All the best to you. And yesterday I had asked you to send me a personal message regarding the work that you have done. I have received messages from a couple of students. I am expecting more students to show me their copy. All the best to you. Bye bye.